सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल आईपैड पर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय माता दी। ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ, ਹਾਲੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੋ ਦਿਨ ਜੋ ਘੜੀਆਂ ਜੋ ਸਾਲ ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ, ਆਨੰਦ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ? ਜਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਦਲਣ ਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਲਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਵੇ, ਸਫਲਤਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਹੁਣ, ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ मैं अपने जीवन में बदलाव चाहता हूं। जरा गौर करना, अपने जीवन च बदलाव लियाना है। मैं खुद को बदलना चाहता हूं, मैं अपने आप को बदलना चाहता हां। क्योंकि एक गल हमेशा याद रखो, जदों इंसान दे अंदरों ये आवाज आती है मैं खुद नू बदलना चाहता हां, उस वेले ही शुरुआत हुंदी है जीवन दे बदलाव दी। ये याद रखो। हुण एक इंसान फर्ज करो बहुत मोटा है, यानी ਉਹਦਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ weight ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹਰ ਵੇਲੇ 150, 200, 250 ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਘਰ 'ਚ ਆਹ ਰੰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਰੰਗ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਡ ਕਾਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ?
सोच अंदर कि मैं घर च बदलाव लियाना है, रंग बदलना है। हुण रंग बदलना है, मन च सोच आ गई, फिर असी रंग पसंद करते हैं। जो पसंद आता है तो फिर असी वो घर का रंग बदल भी देंगे हैं। इसलिए अगर तुसी थोड़ा जिहा देखो कि इंसान के जीवन च बदलाव क्यों नहीं आता, क्योंकि इंसान कभी निर्णय नहीं लेंदा, कभी फैसला नहीं करता कि मैं अपने जीवन नू बदलना है। कह तो दिंदा है बंदा, कह तो दिंदा है। जे कोई हैवी वेट है, हाँ भी मेरा भार ज्यादा, मैं घटाना चाहता हाँ। कोई सिगरट पींदा है, मैं सिगरट छड्डनी चाहता हाँ। कोई शराब पींदा, मैं शराब छड्डनी चाहता। गल्लां तो सारे ही करते हैं, पर यह फैसला नहीं लेंदे कि अगर मैनू पता है यह चीज मेरे वास्ते माड़ी है तो अज मैं निर्णय कर लिया, प्रण ले लिया, फैसला ले लिया कि अज तो मैं अपने जीवन नू बदलना है। और जदों ये फैसला पक्का इंसान ले लेंदा है तो फिर इंसान कोशिश करता है और कोशिश करन दे नाल ही जीवन च बदलाव भी आ जाता है। इसलिए अज तुसी भी अगर जीवन च खुशी चाहते हो, जीवन च आनंद चाहते हो, अपनियां कमियां नू दूर करना चाहते हो, क्योंकि हर इंसान नू पता हुंदा है मेरे अंदर केड़ी कमी है। कुछ कमियां ऐसियां हुंदियां जिहड़ियां साडे सज्जणा मित्रां नू, रिश्तेदारां नू, पति नू, पत्नी नू पता हुंदियां है, पर कुछ कमियां ऐसियां भी हुंदियां जिहदे बारे बंदे नू खुद नू ही पता हुंदा, किसी नू दसदा नहीं है। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਮੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨਸਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ अगर तुसी भी चाहते हो जीवन च खुशियां आन, क्योंकि जिस तरह असीं पहले ही गल की कि इंसान के जीवन च बड़ियां तकलीफां है, बड़े दुख है, बड़ियां परेशानियां है, तो जे असीं इन्हां परेशानियां तकलीफां दुखां तो मुक्ति चाहते हैं तो फिर सानू एक फैसला ये लेना पेगा। और हुण फैसला ले लिया कि मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हाँ, तो असीं बदलाव की करना है। हुण जरा एक दो नुकते ऐसे ही दस देने, बाकी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੀ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਸੀ ਸਟੈਪ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਤੁਸੀਂ कि पहली गल याद रखो कि जीवन च खुश होना है, तंदुरुस्त होना है, कामयाब होना है, तो फिर अपना जिहड़ा माइंड है ना, अपना मन है, इनू क्यों तो कैसे ते सैट करो। क्योंकि जिहड़ा इंसान क्यों दे विच जिउंदा है वो सदा दुखी रहिंदा है, तो जिहड़ा इंसान क्यों तो कैसे विच आ जाता है वो इंसान जीवन च कामयाब भी हो जाता है। समझ आई कि नहीं? गल तो छोटी जी है, एक पासे क्यों और एक पासे कैसे। हुण कई इंसान हुंदे क्यों दे विच जीण वाले। हुण क्यों दा मतलब की है, जरा इहनूं थोड़ा जिहा समझिए। कई इंसान जींदे है कि जे उन्हां दे सिर च दर्द है, ये दर्द क्यों हो गया, ये दर्द क्यों होया, वो क्यों दे विच आ जांदे है, ये गल मेरे नाल क्यों होई, ये मैनूं आ तकलीफ क्यों आई, मैनूं आ परेशानी क्यों आई, वो क्यों दे विच ही जिंदगी जींदे है। तो जिहड़ा कामयाब होने वाला इंसान है वो की कहता है कि जे दर्द आया है तो मैं इस दर्द चों कैसे बाहर जा सकता हूं, मैं ये पीड़ा चों किद्दां निकल सकता हाँ। क्योंकि जिहड़ा कैसे दे माइंड सैट नाल जींदा है ना, वो कहता जे मुश्किल आई है तो हुण मैं ये नहीं देखना मुश्किल क्यों आई है, मैं देखना है मुश्किल चों कैसे बाहर जा सकता हूं। समझदे हो कि नहीं?
क्योंकि एक इंसान के उपर मुश्किल आ गई, मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई। जिस तरह असी महात्मा बुद्ध की एक गल दसी दी है कि महात्मा बुद्ध अपने सेवकों को एक कहानी सुनाते होंगे सी। एक बार एक आदमी तुरिया जा रहा है कि अचानक वो तीर लगा। जो तीर लगा तो वो तीर पेट च लगा, काफी लहू वग रहा है, तड़फ रहा है। कुछ आदमियों ने जो देखा वो कोल आए और आके वह तीर कढ़न लगे तो वह कहता रुको भाई हाले तीर ना कढ़ियो। वो कहते की गल हो गई, जे ज्यादा देर ये तीर तेरे पेट च रहा तो तू मर जाएगा। वो कहता वो गल छड्डो, पहला मैनू ये दसो तीर मारिया क्यों है, ये मारिया किसने है? कोई मेरा दुश्मन सी या मेरा दोस्त सी? आखिर तीर मेरे मारन का कारण की है, ये क्यों मारिया मेरे? वो कहते भाई क्यों मारिया, किदां मारिया, गल बाद विच करांगे, पर पहला तू इलाज करना जरूरी है। पहला तीर नूं कढ के तैनूं बचाना जरूरी है, इसलिए तू सानू उपचार करन दे, ये तीर नूं कढ के ते पट्टी करन दे। वो कहता नहीं, जब तक मैनू पता नहीं लग जाता क्यों है, काहते मारिया, किसने मारिया, कारण की सी, जब तक मैं इसकी गहराई च नहीं जाता उदों तक मैं ये तीर कढ़न नहीं देना। हुण जरा सोचो, ऐसे इंसान नूं असीं की कहांगे कि ऐसा इंसान तो मूर्ख है, क्योंकि क्यों मारिया, किदां होया, काहते होया, अगर यदी खोज में लगे रहे तो फिर तो जान चली जाएगी, बचाव हो ही नहीं सकता। इसी तरह कई इंसान कहते हैं जीवन च दुख क्यों है, ये सानू रब ने जिंदगी क्यों दी, ये दुनिया क्यों बनाई, ये रब ने इदां क्यों किया, रब ने उदां क्यों किया। कई इन्हां सवालों च उलझे रहते हैं और ये कोशिश नहीं करते समझण दी कि हुण जिंदगी मिल गई है तो क्यों दी। ये गल छड्डिए, बल्कि ये देखिए कि जीवन नूं सफल किस तरह बनाया जा सकता है, ये जीवन च आनंद किस तरह प्राप्त किया जा सकता है, ये जिंदगी नूं परमानंद नाल किस तरह जोड़िया जा सकता है। ये चीज़ नूं समझिए। हुण जिहड़ी चीज़ हो चुकी है उहदी चिंता की करनी। इसलिए अगर साडे जीवन च परेशानी है, हुण कई जीव आ जाते हैं कि साडे बेटे का काम नहीं चलता, क्यों नहीं चलता, किसी ने बन्निया तो नहीं, किसी ने पैरों की मिट्टी तो नहीं चक्की। तो असीं कई बार दसिया कि इदां दे भरमां चों निकलो। जे पैरों की मिट्टी चक्कण नाल ही काम बन्ने जाते होंदे तो फिर आ किहड़े वड्डे बिजनेसमैन है, किहड़े वड्डे मंत्री है, मिनिस्टर बैठे हुए है, कोई भी इन्हां दी पैरों मिट्टी चक के इन्हां दे काम बंद दिंदा, तां जो बेचारे काम बंद करके बैठे होंदे। सो इदां दे भरमां च फस के इंसान अपनी जिंदगी दुखां तकलीफां परेशानियां नाल भर लैंदा है। इसलिए जिहड़े अपने मालिक ते विश्वास करन वाले है, मालिक ते भरोसा करन वाले है, वो इदां दे चक्रां च नहीं पैंदे क्यों किदां। वो तो गुरुआं ने एको ही गल कही है कि सब दुखों का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। वो कहंदे अपने रब ते यकीन कर, अपने उस मालिक ते भरोसा कर। अगर वो मालिक दा हथ तेरे सिर ते है तो सारे दुखों की दुआ तां ओहदा नाम है। हुण जिहड़ा मरीज कहेगा मैं बीमार क्यों हाँ, वो पागलपन है। तो जिहड़ा कहेगा डॉक्टर साहब बीमारी है, कोई ऐसी दुआ दिओ कि मेरा दुख दूर हो जाए, मैं ठीक होना चाहता हाँ, तो वह समझदार है। और यही गल गुरु कह रहे हैं, यही गल सानू सच्चे सतगुर दस रहे हैं। पीरां फकीरां ने अपने शब्दां च, अपनी वाणी च यही चीज़ सानू समझाने की कोशिश की है कि ऐ प्यारिया अपने रब ते, अपने मालिक ते विश्वास रख, अपने मालिक ते भरोसा रख, क्योंकि जिहड़ा अपने मालिक ते विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, उसदे जीवन च खुशियां भी जरूर आउंदियां।